السلام علیکم۔ آج آپ لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ جملے کی قسمیں کہ کلام کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ دیکھیے نحو کی چیز چل رہی ہے اور اس میں پہلے آپ نے سیکھا ہے کلمہ، اس کے بعد اب آپ سیکھیں گے کلام۔ تو کلام کی تعریف مکمل طور سے ہو گئی ہے، اس کو آپ نے سیکھ لیا ہے اور یہ بھی جان لیا ہے کہ کلام کو جملہ مفیدہ یا مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ اس کا دو نام اور ہیں۔ یہ کلام کی دو قسمیں ہوتی ہیں خاص طور سے۔ ایک قسم ہے خبر اور ایک قسم ہے انشاء، یعنی الکلام الخبری، الکلام الخبری اور الکلام الانشائی۔ کلام خبری کو جملہ خبریہ اور کلام انشائی کو جملہ انشائیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کلام خبری یا جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں تو آپ جان لیجئے، الکلام الذی یحتمل صدقا و کذبا، وہ کلام جو سچ یا جھوٹ کا احتمال رکھتا ہے اسے کلام خبری کہتے ہیں۔ الکلام الذی یحتمل صدقا و کذبا، جو کلام سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھتا ہے اسے جملہ خبریہ یا الکلام الخبری کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مات حامد، حامد کا انتقال ہو گیا، یا یصلی حامد، آپ یہ جملہ بولیں حامد نماز پڑھتا ہے، یا یہ کہا جائے الولد صائم، لڑکا روزے سے ہے۔ تو یہ تمام جملوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جھوٹ افواہ پھیلا دیا ہو، حامد کا انتقال نہ ہوا ہو اور کہہ دیا ہو ماتا حامد، یا حامد نماز نہ پڑھ رہا ہو لیکن یوں ہی اس کی پارسائی اور شرافت بیان کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی بات اس کے بارے میں پھیلا رہا ہو۔ یا الولد الصائم، لڑکا جو لڑکا ہے یہ روزے سے ہے، یہ روزہ رکھا ہوا ہے، حالانکہ ایسی بات نہ ہو۔ تو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسا کلام جس میں اس بات کا احتمال ہو کہ وہ سچ ہے یا وہ کلام جھوٹ ہے، یا اس کے کہنے والے کو آپ سچا بھی کہہ سکتے ہیں اگر وہ سچ بول رہا ہے، اگر بات صحیح کہہ رہا ہے، اور جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو جس میں ان دونوں چیزوں کا سچ اور جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے اسے الکلام الخبری یا جملہ خبریہ کہا جاتا ہے۔ اور الکلام الانشائی یا جملہ انشائیہ ایسے کلام کو کہا جاتا ہے الکلام الذی لا یحتمل صدقا و کذبا۔ الکلام الذی لا یحتمل صدقا و کذبا، وہ کلام جو سچ اور جھوٹ کا احتمال نہ رکھتا ہو، اس کلام کو کلام انشائی یا جملہ انشائیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے انصر اخاکا، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ اب کوئی آدمی کہہ رہا ہے بھائی اپنے بھائی کی مدد کرو، تو اب یہ کیا کہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ سچ کہہ رہا ہے، اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کے کلام میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا ہے، بس ایک بات ہے جو کہی جاتی ہے، اس طرف نہیں ذہن جاتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن اس ٹائپ والے کلام میں کہ حامد نماز پڑھتا ہے، حامد بڑا نمازی ہے، اگر آپ کسی کے بارے میں کہیں تو سننے والے کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ پتہ نہیں نمازی ہے کہ نہیں ہے، یہ یوں ہی اس کی پارسائی بیان کر رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیا پتا۔ تو اس ٹائپ کے جملوں میں سننے والے کا ذہن اس طرف جا سکتا ہے کہ وہ پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے کہ صحیح نہیں کہہ رہا ہے۔ اور اس میں
अपने भाई की मदद करो ये ना करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, है ना। या मैं पूछ लूं कि भाई आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम या तो बताना चाहेंगे या नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन आपका जहन इस तरफ नहीं जाएगा कि अब मेरा नाम पूछ रहे हो तो पता नहीं सही पूछ रहे हैं कि झूठ पूछ रहे हैं, तो इस तरफ जहन नहीं जाता है। तो जो कलाम सुन करके आपके जहन में ये बात आए कि पता नहीं ये सही है या गलत है, उसे क्या बोलते हैं, उस कलाम को कलाम खबरी बोलते हैं, जुमला खबरिया बोलते हैं। लेकिन जिसमें एक बात कही जाती है और उस तरफ आपका जहन नहीं जाता है कि सही कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, तो उसको जुमला इंशाइया कहा जाता है। अब ये कलाम खबरी जो है बेसिक तौर से यानी खास तौर से ये दो तरह का होता है। इसको आपने देख लिया, ये खास तौर से ये दो तरह का होता है। कौन कौन? जो जुमला खबरिया होता है, एक है इस्मिया और एक है फ़ेलिया। देखो इसी की बात हो रही है अभी, इस तरफ हम लोग बाद में भी आते हैं। तो कलाम खबरी जो जुमला खबरिया है वो खास तौर से दो तरह का होता है, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया अरबी जुबान में। यानी या तो उसकी शुरुआत इस्म से होती होगी या तो उसकी शुरुआत फेल से होती होगी। आसानी के लिए आप जान लीजिए, जुमला इस्मिया बोलते हैं ऐसे जुमले को जिसकी शुरुआत इस्म से हो। हियल जुमला अल्लती तुबदअ बिस्म, हियल जुमला अल्लती तुबदअ बिस्मिन, ऐसा जुमला जिसकी शुरुआत इस्म से की जाती है उसको जुमला इस्मिया बोलते हैं। आप इसे सादा तौर से जुमला इस्मिया को मुब्तदा खबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुब्तदा व खबर। ये जुमला इस्मिया है। आपसे कोई कहे कि आप जुमला इस्मिया की मिसाल दीजिए, तो आप मुब्तदा खबर की मिसाल दे सकते हैं, और बल्कि यही देंगे, दे सकते हैं क्या, यही मिसाल देंगे मुब्तदा और खबर की। तो जुमला इस्मिया किसे कहते हैं? आप जब जुमला इस्मिया की तारीफ देखेंगे कहीं तो इस तरह आपको लिखी मिलेगी, हियल जुमला अल्लती तुबदअ बिस्मिन या हियल जुमला अल्लती तुबतदअ बिस्म, ऐसा जुमला जो जिसकी शुरुआत इस्म से की जाए। जैसे अल वजहु जमीलुन, है ना, या मुहम्मदुन यलअबु, चेहरा खूबसूरत है, मोहम्मद खेलता है। आप देख रहे हैं इसकी शुरुआत क्या की गई है? इस्म से की गई है, शुरू में ये इस्म है। इस तरह का जुमला भी इसमें आएगा, इसे कहा जाए फी है माउन, फी है माउन, उसमें पानी है। कोई चीज हो, कोई बर्तन हो, आप बोले उसमें पानी है, तो ये भी जुमला इस्मिया है। एक बच्चे से पूछा तो बोला ये जुमला हरफिया है। जिसकी शुरुआत इसम से हो वो जुमला इस्मिया है, जिसकी शुरुआत फेल से हो वो जुमला फेलिया है। और चूंकि उसको ये शुरू में हर्फ दिखाई दे रहा था तो बोला जुमला हरफिया है। जुमला हरफिया कुछ नहीं होता है, इसका जुमला हरफिया का वजूद अरबी जुबान में नहीं है, या तो इस्मिया है या तो फेलिया है। ये दर हकीकत है माउन फी है, ये माउन मुब्तदा है और फी ये खबर है। वो मुब्तदा खबर की बहस जब तफसील से पढ़ाई जाएगी तो आपको बताया जाएगा कि नकरा भी मुब्तदा हो सकता है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसके कुछ हालात हैं। जब उसके अंदर उसको किसी तरह से खास कर दिया जाए, आपको बाद में पढ़ाई जाएगी। बहरहाल आप इस वक्त इतना जान लीजिए कि मुब्तदा खबर की अगर कोई तरकीब है तो उसको नहव की इस्तिलाह में जुमला इस्मिया कहा जाता है। और जुमला फिलिया किसे बोलते हैं? हियल जुमला अल्लती तुबदअ बिफ़िल, वो जुमला जो फेल से शुरू किया जाता है उसको जुमला फेलिया कहा जाता है। जैसे कामा हामिदुन या यंसुरु हामिदुन अखाहु, हामिद अपने भाई की मदद करता है। अच्छा, अब जुमला फेलिया में फेल माजी आए, मुजारे आए, मारूफ आए, मजहूल आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस शुरू में माजी आए या मुजारे आए। हाँ, एक बात जान लीजिए, इसमें अम्र नहीं आना चाहिए, क्योंकि अम्र अगर आएगा तो वो जुमला फेलिया, जैसे मान लीजिए आप बोले उनसुर हामिदन, तो ये जुमला फेलिया तो है लेकिन ये जुमला खबरिया का फेलिया नहीं है, ये इंशाइया का फेलिया है। अगर अम्र आ गया, जो जुमले की शुरुआत अम्र से हो रही है, उसमें फेले अम्र है उस जुमले में, तो वो कौन सा जुमला बनेगा? वो खबरिया का नहीं होगा जुमला खबरिया, बल्कि वो इंशाइया में चला आएगा। और हम लोग बात कर रहे हैं कलाम खबरी की, जुमला खबरिया की, लिहाजा इस जुमला खबरिया के फेलिया में इसमें अम्र नहीं आएगा, इसमें या तो माजी होगा और या तो मुजारे होगा। तो जिस जुमले की शुरुआत फेल से हुई हो, वो फेल माजी हो या मुजारे हो,
तो उसको बोलेंगे जुमला फेलिया। जैसे काम हामिद यंसुरु हामिदुन अखाहु, ये आप इस्मिया और फेलिया। अच्छा, ये किससे बनता है? जुमला फेलिया किससे बनता है? जुमला फेलिया आप देखेंगे तो लिखा रहेगा अल जुमलतुल फेलिया ततकव्वनु मिन फेल व फाइल, या अल जुमलतुल फेलिया ततकव्वनु मिन फेल व फाइल व मफूल बिही। जुमला फेलिया बनता है फेल से, फाइल से और मफूल बिही से, या फेल फाइल से अगर वो लाजिम है तो। और जुमला इस्मिया अल जुमलतुल इस्मिया हियल जुमला अल्लती ततकव्वनु मिनल मुब्तदाई वल खबर। जुमला इस्मिया ऐसा जुमला होता है जो मुब्तदा और खबर से बनता है। जुमला इस्मिया की आपसे कोई मिसाल पूछे, आप मुब्तदा खबर की मिसाल दे देंगे। जुमला फेलिया की कोई मिसाल पूछे, आप फेल फाइल या फेल फाइल मफूल की मिसाल दे देंगे, तो ये उसमें फिट हो जाएगा और सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरे तरह का जुमला है जुमला इंशाइया। कलाम, कलमा की तो पूरी बात हो गई है, इसकी कितनी, इसकी तारीफ से कितनी किस्में हैं, अलामतें कैसे हैं, वो सब पूरे आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद कलाम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। कलाम, इसकी तारीफ हो गई है, इसकी दो किस्में हैं, अल खबरी, अल कलामुल खबरी, अल कलामुल इंशाई। कलाम खबरी को, कलाम को मैंने बताया जुमला बोलते हैं, तो जुमला खबरिया या जुमला इंशाइया इसको बोलते हैं, अल कलामुल इंशाई को। फिर इसकी तारीफ क्या है? अल कलाम अल्लज़ी यहतमिलु सिद्क़ व किज़्बा, इसकी मिसाल है ये। और इसकी दो किस्में हैं जुमला खबरिया की, एक है इस्मिया और एक है फेलिया। इस्मिया मुब्तदा खबर को बोलते हैं और फेलिया फेल फाइल मफूल की तरकीब को बोलते हैं। अब आइए इसको देखते हैं कि इंशाई क्या है, जुमला इंशाइया क्या होता है, तो जिसमें सच और झूठ का इस्तेमाल नहीं होता है। इसकी दो किस्में होती हैं, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। इसकी दो किस्में हैं जुमला इंशाइया की। कौन कौन? एक है तलबी और एक है गैर तलबी। इंशाई, जुमला इंशाइया दो तरह का होता है। एक इंशाइया, जुमला इंशाइया में किसी चीज का मुतालबा होता है, कोई चीज तलब की जाती है, जबकि एक तरह के जुमला इंशाइया में किसी चीज का मुतालबा नहीं होता है, कोई चीज तलब नहीं की जाती है, लेकिन उसमें सच और झूठ का इस्तेमाल भी नहीं होता है। और इसमें कोई चीज तलब की जाती है और उसमें सच और झूठ का इस्तेमाल नहीं होता है। तलबी ये 5 तरह का होता है। आज मैं सिर्फ नाम लिख देता हूं, अम्र, नहीं, इस्तिफहाम, तमन्नी और निदा। अगर इस टाइप के जुमले हैं तो जुमला इंशाइया में आते हैं, और वो भी इंशाई तलबी में। अम्र जैसे उनसुर, नहीं है जैसे ला तंसुर, इस्तिफहाम है हल तअलमु इस्मी, क्या आप मेरा नाम जानते हैं, तमन्नी है ना लैत शबाब यऊदो या लैतनी अंजहु फिल इख्तिबार, ये सब है। निदा है जैसे या रजुलो, यल्ला, या अल्लाह, अल्लाहुम्मा, ये सब है ना, ये निदा। तो ये जुमला इंशाइया में आएगा, कलाम इंशाई तलबी में आएगा। और गैर तलबी, इसकी भी तकरीबन 6 किस्में हैं, 5 किस्में इसकी हो गई और मशहूर 6 किस्में इसके गैर तलबी की हैं। ये आप नाम नोट कर लीजिए। जैसे ताज्जुब है, ताज्जुब जैसे मा अहसन ज़ैदन, ज़ैद क्या ही अच्छा है, तो ये जुमला इंशाइया गैर तलबी में आएगा। मदह है, ज़म है, मदह है, ज़म है, जैसे मदह की मिसाल निअमर रजुलु हामिदुन या बिअसर रजुलु हामिदुन, ये ज़म की मिसाल हो गई। कसम है, कसम वल्लाहि ला अफ़अलु कदा, अल्लाह की कसम मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा वैसा नहीं करूंगा, है ना। अफ़अलुर रजा, अफ़अलुर रजा यानी जो रजा के लिए अफ़आल आते हैं, जैसे अफ़ल्लाहु अन यअफ़ुआ अन्नी, उम्मीद है, मैं पूरा भरोसा करता हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर देगा। और ऐसे ही सियगुल उकूद है, सियगुल उकूद जैसे, हाँ लिख लो, सियगुल उकूद जैसे बे, तो अपने मशहूर मिसाल पड़ी होगी, बे तो वश्तरई, तो मैंने बेच दिया, मैंने खरीद लिया, मैंने बेच दिया या मैंने खरीद दिया। या इस तरह से जो निकाह के सेगे हैं, है ना, मैंने निकाह कर दिया इनका इससे, उन्होंने कहा मैंने कबूल कर लिया, तो ये सब अक्द है, वकूद है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये गैर तलबी के मशहूर 6 हो गए। और ये 1 2 3 4 5, यानी अगर हम टोटल बात करें कि कलाम इंशाई की कुल कितनी किस्में हैं, तो ये सब 11 किस्में हो गई। उसमें से 5 तलबी में से आती हैं और 6 गैर तलबी में से। तो चाहे तलबी हो या गैर तलबी हो, वो सब इंशाई हैं।
तो जुमला इंशाइया की ये 11 किस्में हो गई, और जुमला खबरिया की ये मेन ये 2 ही किस्में हैं, इस्मिया और फेलिया। इस चीज को आपने तफसील से समझ लिया होगा। इन्हीं बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको कलाम की नौइयत, किस नौ का ये कलाम है, ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद इंशाल्लाह एक एक करके हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे इस्मिया ये इसको कैसे हम समझेंगे, अगर उर्दू से अरबी में ट्रांसफर करना हो तो फिर कैसे करेंगे, फिर फेलिया हम बताएंगे, फिर धीरे धीरे करके ये सब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।